ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 550th ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੇ ਜੈਮਸ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ I can apply on my day-to-day life in today's age, and so that my attitude can be changed and we find the answer. For example, कोई क्वेश्चन पूछता है धर्म दी की लोड़ है, be it young generation, be it housewife, be it person from corporate sector, or be it retired person, whosoever, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ common question ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। So we find from the ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਰਮ ਦੇ meanings। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ ਧਰਮ, हर को नाम जप निर्मल करम। क्योंकि ये 550 साल पूर्व है, इस करके वर्ल्ड वाइड, लास्ट वीक आई वॉज इन कैनिया, सो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड एंड वेयर एवर वी गो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस बेसिक्स। वी आर नॉट टॉकिंग एडवांस सब्जेक्ट्स, रादर वी आर ट्राइंग टू talk about the basics because we are gone far away from the basics, and that's why we are drifted away from the true path। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। there is no doubt that we are too much involved in rituals, and I may say that we are worshipping idols as well as pictures। ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪੂਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ ਧਰਮ, हर को नाम जप निर्मल करम। सारी दुनिया में अलग अलग धर्म मज़हब नहीं होते हैं, बल्कि एक ही धर्म होता है। बाणी कहती है एक को धर्म दृढ़ है सच कोई, देयर इज़ ओनली वन रिलीजन, एंड दैट इज़ आइडियल्स की प्रैक्टिस करना। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, यू हैव टू रिमेंबर गॉड। निर्मल कर्म, निर्मल कर्म means ideals। So when we are practicing ideals, we are living practical religion। When we are practicing morality, we are practicing religion। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਥੀਸਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਸਨ। ਧਰਮ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ
कोशिश करते हाँ कि असी गुरमत दे बेसिक्स जिहड़े मूल सिद्धांत ने उन्होंने समझीए। टुडे आई वॉज टोल्ड दैट देर इज़ क्वेश्चन आंसर सैशन। आई हैव नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट spontaneously I can share with you। किरत करो, नाम जपो, वंड छको, ये गुरमत के 3 सुनहरी असूल ने। I will really appreciate if somebody from the audience can explain that in short। फिर असी इसनूं बाणी चों समझांगे। One can raise your hand and come over that stage and share किरत करो की होंदा है। We are talking about 3 principles: किरत करो, नाम जपो, वंड छको। हुण तक असी की समझे? Whatsoever we have, that is our paradigm, that is our thought process, that is the way we think। But Bani says, मन की मत त्यागो हरजन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। So Bani is telling me that you are supposed to understand how Guru thinks। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। So ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, all over the world, whosoever in any age, if he is following Guru's paradigm, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। If one thinks according to the paradigm of Guru, and Guru does not mean physical, Guru means universal truth। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ means universal truth that is applicable to all, regardless age, regardless color, regardless status, regardless gender, and regardless any communal differences। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੈਲੇਮਿਟੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ, that is our thought process, that is our we are imposing। second, ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਡਾਉਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਪਾਣਾ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਪਾਣਾ ਮੀਨਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਾਣਾ ਮੀਨਸ ਪੈਰਾਡਿਮ, ਪਾਣਾ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। कित्थों पता लगेगा? सेकंड वर्स, अपने पाने जो चल रहा है भाई, अपने पाने मीन्स जो अपनी मन मर्जी से चलता है। अपने पाने जो चल रहा है भाई, विछड़ चोटा खावे। ही इज डिपार्टेड, वन इज डिपार्टेड फ्रॉम द ट्रू पाथ। ਇਹਦਾ मतलब सतगुर का पाना वर्सिस साडा इंडिविजुअल का पाना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਡਿਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पर असी अपने पाने दे अपनी मन मर्जी दे अर्थ करन वेले कहंदे आ, जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिन मात की जहर बांझा। बाणी ते गलत हो नहीं सकती, पर असी ये मीनिंग गलत कर देंदे आ कि जिसने भगवान का नाम नहीं लिया है, जिसके हृदय में भगवान जी नहीं बसते हैं, उसकी माँ को बांझ कर दो।
गलती कोई होर करे और उदी सज़ा उसकी मां नूं क्यों मिले? ਇਹਦਾ मतलब गुरमत ਦਾ बड़ा बेसिक फंडामेंटल है कि असी विमेन नूं एक्यूज़ नहीं करते। हाँ, वी आर नॉट सपोज टू एक्यूज़ द विमेन, बट इन आवर हाउस, बट इन आवर फैमिलीज़, इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट गिव द इक्वल राइट्स टू द विमेन, क्योंकि साडा थॉट प्रोसैस बन चुका है जे कोई बच्चा गलती नहीं करता, अच्छा काम करता है, तो फादर कहता आखिरकार बेटा मेरा है। पर जे बच्चा गलत काम करता है तो विमेन नूं अपनी वाइफ नूं एक्यूज़ करता है, तू इसनूं लाड नाल विगाड़िया है, तेरे कारण बच्चा खराब होया है। सी ये गल कित्थों आई? क्योंकि असी गुरुद्वारियां च ये गल सुन लई, जन्नी जनै तां भगत जन। इस पंक्ति के मुताबिक असी यह समझ लिया कि एक मां नूं चंगा बच्चा जमना चाहिए, नहीं तो जन्नी बांध रहे काए गवावे नूर। जन्नी जनै तां भगत जन, कह दाता कै सूर। यह गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति नहीं है, पर असी थॉट प्रोसैस इस पंक्ति मुताबिक बना लिया। मैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियस तुहाडे नाल सांझ कर रहा कि 550 साल मना रहे हैं, तो सानू अंदरों अर्ज होनी चाहिए है, सानू बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए है कि मैं शुरू तो बेसिक नू समझा। जो मैनू पता है वो गलत पता है। दिस गलत इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वीर भुपिंदर सिंह, दिस गलत इज़ नॉट सब्जेक्ट टू हू रोट वट, बट गलत इज़ माई परसैप्शन। अपने पाने जो चल पाई विछड़ चोटा खावे, मैं अपनी सोचनी मुताबिक बनाया तो मेरा समाज बिगड़ गया, भी मैनू इक्वैलिटी नहीं मिली। जदों असी बाणी चो बाणी दे अर्थ लभांगे तो वह शब्द विमेन दे बारे नहीं कह रहे ने। सो मैं मेन रिक्वेस्ट करना है कि सानू बाणी चो बाणी दे अर्थ लभने हैं, तो सानू किरत करो दे मीनिंग्स डिफरेंट मिलणगे। नाम जपो दे मीनिंग डिफरेंट मिलणगे, वंड छको दे मीनिंग डिफरेंट मिलणगे। सो जदों असी बाणी चो बाणी दे अर्थ लभदे हां तां असी बाहरों outside from Guru Granth Sahib we don't borrow anything. So बाणी दे चो बाणी दे अर्थ लभन वेले we are supposed to understand Rahau. Rahau is the tool which is used as a central idea of the Shabad. So Rahau means pause. जिस पंक्ति नू पढ़िया है इनू बार बार पढ़ो। दिस इज द पिवटल पॉइंट ऑफ द शब्द। सो उसका राहु है, मेरे मन जप राम नाम हर मांझा। गल मेरी चल रही है, मेरी बायोलॉजिकल मां दी ते गल चल ही नहीं रही। When Rahau is talking about myself, तो मेरी गल चल रही है। जे मेरी गल चल रही है तो उसके अर्थ बननगे माता मत पिता संतोख। पंक्ति तो सानू गुरमत का कॉन्सैप्ट मिलेगा कि मत नू माता कहंदे ने। जिन हर हृदय नाम ना बस्यो, जो इंसान गॉडली क्वालिटीज़ को याद प्रैक्टिस में नहीं करता है, तिन मात की जय हर बांझा। उसकी मत बांझ हो जाती है, उसकी मत चंगे आइडियल्स दियां गल्लां और चंगे आइडियल्स के एटीट्यूड वाले सुभाव नूं कंसीव नहीं कर पाती है। उसको बांझ मत बोलते हैं। जिसकी मत बांझ हो जाती है वो इंट्रोस्पेक्टिव नहीं रहता, उन्होंने अपने अवगुणों बारे पता नहीं लगता। हमेशा पति बोलता है पत्नी गलत है, पत्नी बोलती है पति गलत है, बच्चे बोल रहे होंगे ने पेरेंट्स गलत ने,
माँ प्यो बोल रहे होंगे ने वी आर अपसैट के बच्चे कहना नहीं मनते ने। वी थ्रो द ब्लेम ऑन अदर्स। जिन्हर हृदय नाम ना बस्यो तिन मात की जय अरबांजा। आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, तिन सुंझी दे फिर बिन नावे वो खप खप मुए करांचा। वो दिन रात अपसैट रहते हैं। हुण मैं दिन रात जे मैं अपसैट रहिंदा हाँ, इसका ब्लेम मैं किसी ते नहीं पावांगा। मनु इंट्रोस्पैक्शन करनी पेगी, वेयर आई वॉज रॉन्ग। दद्दा दोष ना देव किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। वन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सुधारे। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमने अपनी सोचने के मुताबिक गुरबानी के अर्थ कर लिए। नरु मरे नर काम ना आवे, बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आंदा। पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मर जाए तो 10 काम आता है। अगेन मैं तुहाडे डिफेंस कलोनी के प्रबंधक, डिफेंस कलोनी की संगत और इत्थे साकेत के प्रबंधक भी आए हुए हैं, भोगल गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक भी आए हुए हैं, और आस पास के कई गुरुद्वारियां दे उन्होंने मैं जानता नहीं हाँ। मैं सब नूं रिक्वेस्ट करन आया, असी बाणी चों बाणी दे अर्थ लभने ने। बाणी चों बाणी दे अर्थ लभन वेले नॉट सब्जेक्ट टू हाउ भुपिंदर सिंह थिंक्स, नॉट सब्जेक्ट टू हाउ भुपिंदर सिंह नरेट्स, नॉट सब्जेक्ट टू हाउ भुपिंदर सिंह रोट द बुक्स एंड ट्रांसलेटेड, सब्जेक्ट टू द इंटरनल लॉजिक ऑफ गुरबानी, हाउ बाणी इज कंपाइल्ड। जेड़ा बंदा मैनू पसंद करता वो कहेगा भुपिंदर सिंह जी इंज कहते हैं, जेड़ा बंदा मस्कीन साहब नू पसंद करता वो कहेगा मस्कीन साहब इंज कहते हैं, जेड़ा बंदा एक थर्ड पर्सन को पसंद करेगा वो फलाने सिंह जी इंज कहते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, कौन किंज कहता है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, मैं ये कहना आया, डोंट फॉलो मी, फॉलो बाणी, फॉलो बाणी द इंटरनल लॉजिक, हाउ दिस बाणी इज कंपाइल्ड। सो अगेन रहाओ, रहाओ है अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे रहाओ। गल मेरे कर्मा दी चल रही है। गुड्डी भैन जी, मैं तुहानू स्पैशली ऑडियंस एक्नॉलेज करके कहना चाहता, तुसी गुरबाणी गाते हो, तुहानू अपने पेरेंट्स तो बाणी पढ़न का शौक है, तुहाडी सिस्टर मेरी भरजाई है माला, वो भी बाणी पढ़ती है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, दिस इज़ हाई टाइम कि असी बाणी नू खोजना शुरू करिए, बाणी चों बाणी दे कंपाइलेशन नू लभीए। जदों मीनिंग बदल जाएंगे साडा थॉट प्रोसैस बदल जाएगा। जे असी बाणी चो बाणी दे अर्थ नहीं लभांगे तो असी अर्थ करांगे बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आंदा, पशु मर जाए पशु काम आंदा। यस, हमको लगता है ये सरफेस पे ये मीनिंग्स ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि ऐसे हमने अपना थॉट प्रोसेस तो बना लिया, पर ये वाले शब्द मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहा। मैंने अपने आप को एस्केप कर लिया। एक बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, देखो ना बंदे मर जाते हैं किसी काम नहीं आते हैं, और देखो पशु मर जाए पशु काम आता है। सिंपली आई एस्केप्ड, साडी बोट मिस हो गई, एंड वी आर स्मार्ट टू मिस द बोट। कबीर टाला टोला दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। वी आर वेरी स्मार्ट के टालो कैसे, एस्केप कैसे करो। मैंने याद है एक कंट्री च मैं शब्द पढ़ रहा सी, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी वो कदी ना बोले कौड़ा। एंड आई एक्सप्लेन्ड इन 5 आवर्स कि रब मिठा बोलता है, सो वी आर सपोज टू स्पीक मिठा, सॉफ्ट, लविंग, वार्मथ वाला। आफ्टर 5 आवर्स वन लेडी केम एंड शी सैड तुहाडा दा लेक्चर बहुत अच्छा सी, तुसी मिठा बोलन ते बड़ा ग्रेट लेक्चर दिता, बट यू नो मैं ना पूरे प्रोग्राम में डोर ते बाहर देखती रही, काश मेरी सस आ जाए, काश मेरा हस्बैंड आ जाए, वो सुन लैन। मैं उस लेडी नू क्या तुसी नहीं सुनिया, बिकॉज वी आर स्मार्ट टू एस्केप।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੰਦੂਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਾਰਪਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਸਕੇਪ। And when we know I escape, then we are smart to keep our man ki mat, which is negative. ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਮ ਕੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਨ ਅਵਰਾ ਵਿਡਾਣ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਈਵਲ ਥਾਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਿਗਾਈਲਿੰਗ ਡਿਸੀਟਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਵੀ ਸਟੇ ਵਿਦ ਮਨ ਕੀ ਮਤ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਾਮ क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर करो, तो मोह डज नॉट मीन कि अपने बच्चे से प्यार करने वाला मोह छोड़ दो। यू डोंट हैव टू रिनाउंस, त्यागना नहीं है बच्चे के मोह को। मोह कह रहे ने अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट विद योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अटैचमेंट विद योर नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ना है। सो मोह दा साडे टब्बरां दी रिलेशनशिप नूं मोह नहीं कहंदे ने। गुरबानी दा बिल्कुल पैराडिम ही डिफरेंट है। घर की नार बहुत ही जांसियों, घर की पत्नी की बात नहीं चल रही है, घर की नार इस मत नूं कहंदे ने। घर की नार बहुत हित जांसियों, तेरे को अपनी गंदी मत के साथ बहुत प्यार है, सदा रहत संग लागी। जिथे जाना है भैड़ी मत लैके जाना है, जेड़े लाहौर भैड़े पिशौर भी भैड़े। सो जदों असीं नरू मरे नर कामना आवे वाला शब्द पढ़िया, so I discussed this. They called me in Berkeley University and they asked me, what is your criteria to translate Gurbani? I said, my criteria is not my opinion, it's not my interpretation. My criteria is subject to compilation of Guru Granth Sahib, internal logic of Guru Granth Sahib. साडा यूथ जदों ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ वर्सेस वर्ल्ड पेरेंट्स इंक्लूडिंग गुरुद्वारा कमेटीज़ दे से यूथ गुरुद्वारे नहीं आंदा। साडे लिविंग ट्रेजर प्रोग्राम में 90% तो ज़्यादा यूथ ही आंदा है, बिकॉज वी टॉक लॉजिकल, वी डो नॉट टॉक अबाउट स्टोरीज, वी टॉक अबाउट गुरबानी की कहती है, वी टॉक अबाउट हाउ टू बी इंट्रोस्पेक्टिव, वी टॉक अबाउट कि गुरबानी मेरे एटीट्यूड नूं किस तरह चेंज कर रही है। सो जदों सैल्फ एलिवेशन होती है ना, उस वेले यूथ नूं पसंद आता है। यूथ आके बोलता है, मैं अपने ऑफिस वालियां दे नाल गल करदा हाँ, वो कहंदे ने तुमने क्या लिविंग ट्रेजर अटेंड किया है। एक नौजवान तेजबीर सिंह मेरे नाल जिहड़ा तुसीं टीवी ते देखिया होगा, राइट साइड बैठदा है, आलाप भी करदा है, तबला भी कई बारी वजांदा है। उन्हें MBA करके अपना ऑफिस ज्वाइन किया। हैड ऑफिस बॉम्बे तो कॉल आई, तेजबीर कौन है, आफ्टर 5 वीक्स। मैं क्या क्यों की होया, कहंदा माई बॉस आस्क्ड मी, मैनेजिंग डायरेक्टर, तेजबीर कौन है। सुना है तेजबीर शराब नहीं पीता, सुना है तेजबीर हायर टोन में बात नहीं करता, सुना है तेजबीर गाली नहीं निकालता। तेजबीर बिलोंग्स टू लिविंग ट्रेजर एंड ही इज यूथ। सो जदों परसनल एलिवेशन होती है तो यूथ भी आएगा ही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड नू पर्ल एसबक सेज, नोबल प्राइज विनर, दैट देर इज ओनली वन, दैट इज गुरबानी, विच कैन गिव द लॉजिकल आंसर टू दिस होल वर्ल्ड। एंड बट अफसोस उसने प्रकट किया, अफसोस यह है कि सिख इसको नहीं पढ़ेंगे। सो वेयर वी आर इन्वॉल्व इन प्रभात फेरी, वी आर इन्वॉल्व इन नगर कीर्तन, वी आर इन्वॉल्व इन संगमरमर, वी आर इन्वॉल्व इन सोना लगाते। असी इन्हां चीज़ों में अपनी एक्सरसाइज लगा रहे हैं। आई कैन नॉट से स्टॉप कर दिओ, पर असी 550 साल मना रहे हैं, मना भी गुरु नानक साहब का रहे हैं। प्रधान साहब ने कहा वी आर
ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ 50 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ 600 ਸਾਲ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਏ ਪਸ਼ੂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਹਾਉ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਰਟੇਨਸ ਟੂ ਮੀ। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे राव। सो द फर्स्ट वर्स नरु मरे नर काम ना आवे पशु मरे दस काज सवारे, इट परटेन्स टू मी टू। ये वर्स भी बोल रही है नरु मरे नर काम ना आवे। अगर मेरे में से इंसानियत मर जाती है, इंसानियत मीन्स व्हेन आई टर्न इनह्यूमेन, जदों मेरे अंदरों नर मतलब इंसान बंदा मर जाता है, नर काम ना आवे। बट पशु मरे, अगर मेरे अंदरों एनिमल डीड्स वाला, एनिमल थॉट्स वाला, एनिमल एक्शंस वाला स्वभाव मर जाए, पशु मरे 10 काज सवारे, देन आई एम गुड फॉर माई सेल्फ एंड गुड फॉर अदर्स। हुण शब्द टुक गया। इंज जदों असी अपने ते टुका के बाणी पढ़ते हैं ना, तो अज दे 3 बेसिक फंडामेंटल्स निकल आएंगे। तुहाडे चों हुणे भी किसी नूं चांस है कि तुसी बेसिक फंडामेंटल किरत करो नाम जपो वंड छको आके इत्थे एक्सप्लेन कर सकते हो। वन कैन कम ऑन द चेयर और द डाइस और कैन स्पीक। अदरवाइज जो प्रिवेलिंग, जो हमने सुने हुए हैं, हमने क्या सुना हुआ है? हमने सुना हुआ है किरत करो मतलब काम पे जाया करो। और हमारी डेफिनेशन किरत करो की है कोई ऐसा काम किया करो जिससे पैसे मिले, इसका नाम हमने किरत रखा हुआ है। एम आई राइट? से यस और नो। थोड़ा लाउडली प्लीज। जे किसी नूं नींद आ रही है तो मैं जोक सुना सकदा। असी किरत करो दा मैं ना समझा होया है कोई भी पढ़ाइयाँ करो या कोई भी मेहनत करके अपने पाँव पे खड़े, कमाई का नाम है पैसे, और पैसे तुमने कमा लिए, इसका नाम हमने किरत रखा हुआ है। गुरु साहब कहते ने किरत विरत कर धर्म दी। गुरबाणी सानू कहती है किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। मैं अपने बैड थॉट्स के कारण जिहड़ियां बैड डीड्स करदा उहदे कारण मैं तुहाडे तो मैं डिपार्ट हो चुका होया। सो अकॉर्डिंग टू गुरबाणी किरत का मतलब होता है अर्न गॉडली क्वालिटीज इन योर प्रैक्टिस, देन यू आर एलिवेटेड। असी सारे एलिवेटेड तो है नहीं, बट वी फाइट फॉर द रिलीजन। हमारा रिलीजन खतरे में है, दूसरे रिलीजन वालों को मार दो। मिनॉरिटी मेजॉरिटी की गल चल रही है, पर तू क्या ये रिलीजन जीता है? आप डू यू प्रैक्टिस दिस? जे अमृत है तू पीना है, आप तो तू पीना नहीं। आम तौर पर देखो तो की होता है जदों माँ बेटे नूं बोलती है बेटा सो जाओ, फोन पे ज़्यादा बातें मत करो, टीवी मत देखो, तब बच्चा नहीं सुनता। वो अपने सिबलिंग को कहता है मम्मी बोलती है बड़ों का कहना मानना चाहिए, आप तो दादी का कहना मानती नहीं है। बच्चा किस तरह फॉलो करता है? असी सारे कह रहे हैं कोई यूथ नू गुरबाणी पढ़ा दे, आप असी नहीं पढ़ रहे। आप असी दाज मंगते हाँ, आप असी अपने आप को पुत्र वाला कहते हाँ। आज असी धीआं नूं दुखी करते हैं ना। यूथ सानू नोटिस कर रहा है। एक बंदा इत्थे खड़ा होकर लैक्चर दे रहा सी, लैक्चर देंदे उन्हें इंज किया, थोड़ी देर बाद फिर इंज किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंज किया। यू अंडरस्टैंड कि इंज क्यों करते हैं? सामने तो एक बच्चा खड़ा सी। ये जो आप बार बार ऐसे कर रहे हो ना चंगे नहीं लग रहे,
वो लैक्चरर पता ही कहता है, अगर नहीं करूँगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। वो बेचारा बार बार अपनी पेंट संभालता सी। असी नौजवानों वास्ते समाज बनाया ही नहीं है, असी नौजवानों नूं चंगे ही नहीं लग रहे। जदों मम्मी पापा फाइट करते हैं और बच्चे नूं कहते हैं गुरुद्वारे जाया करो, पाठ करया करो, तो कहता तुम तो गुरुद्वारे जाते हो, तुम तो लड़ते रहते हो। जब लग तारै बैरी मीत तब लग नेचल नाई चीत। असी लोगों को अपने वैरी मित्र बनाया, फलाना मनु चंगा लगता, फलाना इस घर च आएगा, फलाना मनु चंगा नहीं लगता, फलाना इस घर अंदर एंटर नहीं कर सकता। असी पढ़िया भी जब लग तारै बैरी मीत तब लग नेचल नाई चीत, अपसेट तो असी होंदे हाँ। सो नरू मरै नर काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवारे। अपने ते टुकाण तो बाद मैं गुरबाणी दे इंटरनल लॉजिक मुताबक तुहाडे नाल गल कर रहा कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। अच्छा, हमने सोचा था पैसे ही कमाते हैं, कर्म भी कमाए जाते हैं। कर्म का मतलब होता है थॉट प्रोसेस, डिवाइन थॉट प्रोसेस, डिवाइन इंटलैक्ट, ਉਹਨੂੰ विवेक बुद्धि कहते हैं। विवेक बुद्धि ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ एटीट्यूड चेंज होता है। विवेक बुद्धि पूरा चैप्टर है, फ्रॉम हीयर टू हीयर। एक नॉलेज लैनी वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग, फिर रॉन्ग नूं छोड़ते जाना, राइट दी प्रैक्टिस कर करके दृढ़ करते जाना। इस सारे सबजैक्ट नूं विवेक बुद्धि कहते हैं, डिवाइन कॉमन इंटलैक्ट कहते हैं। पहली अक्ल लेना वट इज़ राइट वट इज़ रॉन्ग, सानू पता ही नहीं वट इज़ राइट वट इज़ रॉन्ग। एनालाइज करने की अक्ल, पर सिर्फ एनालाइज करने तक खड़ा नहीं रहना। रोग दारू दोवें बुझे ता वैद सुजान, फिर उसके सोल्यूशन पर प्रैक्टिस भी करना और रॉन्ग की प्रैक्टिस छोड़ देना। रॉन्ग का ख्याल भी ना आना, सप्रेस नहीं करना, रॉन्ग का ख्याल आना भी आस्ता आस्ता मंदे फुरने भी नहीं आते ने। किरत करो, नाम जपो, गुरबाणी सेज ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे। तो असी ज्ञान 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 थोड़ा ना बोलते हैं। सो गुरबाणी चों असी नाम जपो दा मैना समझते हैं, हर को नाम जप निर्मल करम। जदों असी निर्मल करम करते हैं ना, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੋਡ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। वंड छको, आप जपो अवरा नाम जपावो। वो अपने कंफर्ट जोन तो बाहर निकल के गॉड लाइक क्वालिटीज़ नूं अपने समाज अंदर सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करते हैं और वंडते हैं और ਉਹਦੇ बारे गल्लां करते हैं, हर वेले ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गॉड लाइक क्वालिटीज़ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हाँ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ किरत करो ਦੀ ਗੱਲ करांगे, तो जो हमारी हाउस वाइफ है, जो मेरी माँ है, जो मेरी दादी है, जो मेरी नानी है, जो मेरी पत्नी है, वो काम पे नहीं जाती है, वो कोई पैसे कमा के नहीं लाती है, लेकिन वो स्पिरिचुअली सिंसियरली कुकिंग करती है बड़े प्यार से। तुहाडे वास्ते बनाया है, खाओ, एक फुलका होर खाओ प्लीज़, मैनू खुशी होएगी। है पाओ, दिस इज किरत करो। पैसे नहीं कमा रही है वर्सिस वो किरत ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਵਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜੀ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, then it's not kirt, then it is dictatorship। सो जाओ, आंखें बंद, बोलना नहीं, हिलना नहीं, मैं देख रही हूँ। दिस इज नॉट मदरहुड, दिस इज डिक्टेटरशिप। इस तरह डिसिप्लिन नहीं, माँ प्यार दे नाल। सो माँ की जिहड़ी मदरहुड है ना, प्यार दे नाल, भाव दे नाल, पैशन ओवरफ्लोइंग, नो कंडीशंस। किरत करो।
मैं दुनिया 'ਚ कुछ भी करा रिटर्न की भावना ना होए, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे। आई एम नॉट आफ्टर रिवार्ड्स, इज किरत करो। और गॉड लाइक क्वालिटीज़ ਨੂੰ अपने ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਪਕਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਨੀਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ। ਰਵਨੀਤ, ਹਾਂਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਿਊਮੈਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਲੱਭਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਆ, ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਸੈਂਸਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰੈਕਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 400 ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਲੌਜਿਕ ਆਫ ਬਾਣੀ, ਹਾਊ ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਈਲਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ मैं एक एग्जाम्पल दिया। अंधे से ना आँखें जिनमुख लोएण नाए। उनको अंधा नहीं कहते हैं जिनकी ये आँखें नहीं होती। ठीक है, हुण गुरबाणी ये पहली स्टेटमेंट दे रही है, हुण गुरबाणी अपना आंसर दे रही है। अंधे से ना आँखें जिनमुख लोएण नाए, आंसर अंधे से ही नानका खसमों कुत्थे जाए। They are not called blinds, those who don't have these eyes, rather they are blinds who wander away from the true path. अब अंधे की मीनिंग समझ आए? इन आँखों वाले के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सो रवनीत जी, इस तरह गुरबाणी लॉजिकल गल करती है, असी लॉजिक लभना है। फाइन। सेकंड, मेरी लाइफ इच प्रियोरिटी है कि नहीं है? और रवनीत जी तुहाडे ते अप्लाई नहीं होंदा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा। आई एम सिविल इंजीनियर, आई वाज सिविल इंजीनियर। when you are civil engineer, then you construct the roads, you make the bridges, you make the houses. So I was civil engineer. I thought ऐ सब कुछ छोड़ो यार, हम ना हार्ट टू हार्ट ब्रिजेस बनाते हैं, हम हार्ट टू हार्ट फैमिली रिलेशनशिप के हाउसेस बनाते हैं. सो आई चोज दिस वे टू शेयर द विजडम विद द पीपल. सो दैट इज माई inner civil engineering. Second, my father in 93 he said
ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਦ ਮੀ, ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬੈਂਕਾਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਫॉर ਮਾਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਲਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ। ਮਾਈ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜਣੀ ਹੈ 24/7, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ 24/7, ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ 24/7, और वर्ल्ड वाइड डिस्कस करना है 24/7, और चार्ज एक पैसा नहीं करना, फ्री करना है। सो दिस इज माई प्रायोरिटी, आई चोज दिस पाथ। आई एम नॉट इंपोजिंग ऑन अदर्स के सारे अंज करन, बट वट हैपन्स विद मी, जदों मनु लोकी घर विच, सड़क ते, पार्क विच, पार्टीज विच या चार बंदे बैठ के गल करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा दिल करता सिंसीयरली आंसर करते हैं राइट फ्रॉम द रूट कॉज, है ना, ਉਹਦਾ ABC ਤੋਂ यू नो से मेरा ना बेटा उत्थे बस स्टॉप ते खड़ा है, मैंने जाना है। दूजा कहता मैनू ना किधर काम है। तीजा कहता अच्छा फिर कभी टाइम होया तो गल करांगे। सो वी डोंट हैव प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड दिस। Once we have burning desire to understand this, ਤਾਂ ਉਹਦਾ एग्जाम्पल एक शेयर करता। There is one boy, he met me here when in 96-7 I came from States. He said ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ he came and stayed with us. Then he said ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, I want to stay here in States. आई सैड ओके। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ BMW ਔਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਆਈ ਡਰਾਈਵ ਯੂਰ ਕਾਰ, ਸੋ ਆਈ ਨਿਊ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ। ਆਈ ਸੈਡ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿਡ ਆਫਟਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਾਈ ਟਾਊਨ, we live in Ardsley Town, New York. He came back. When he got down, my brother saw it. His name is Yogi. Yogi कहता भूपिंदर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, he is not supposed to drive, और ਭੁਪਿੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਤੇ we will be in trouble, so he is not supposed to drive. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, they have Mercedes and Benz in India. Yogi said whatsoever they have, but here he is not allowed to drive the car. Ultimately, I found his urge to drive the car was he wanted to drive himself to know the directions. Ultimately, he wanted to start the transport business over there. Priority, some interest, and for that burning desire to do it. Correct? So I said, यार मेरा भरा भी मना कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ यू कैन नॉट ड्राइव अनलेस यू हैव द लाइसेंस। यू नो व्हाट ही डिड, ही स्टडीड एंड देन ही गेव द रिटन एग्जाम एंड देन ही वेंट थ्रू एंड ही गॉट द लाइसेंस। आफ्टर 5-6 years ही सैड ओ भुपिंदर सिंह जी तुहाडी पंजाबी कौन पढ़े, गुरबाणी ग्रामर कौन पढ़े, शुद्ध उच्चारण कौन पढ़े। मैं उन्होंने पूछा अगर ड्राइविंग लाइसेंस स्पैनिश विच होंदा ना तुसी ज़रूर पढ़ना सी, इफ इट वाज इन संस्कृत तुसी ज़रूर पढ़ना सी क्योंकि तुहाडी प्रियोरिटी सी। सो जदों सानू प्रियोरिटी होएगी, अंदर इंटरस्ट होएगा, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਈ ਆਈ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖਾਂ, ਪੁੱਟ ਅਪ ਵਾਈ ਟੂ ਯੂਰ ਗੁਰੂ। ਵਾਈ the more you put up why to the Gurbani tells you the answers, you get the answers। जितना ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ why put up ਕਰਾਂਗੇ। for example, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ मीनिंग ਕੀ समझे जाते हैं? कितने दुख हैं, कितने लोग ही भूखे हैं, ये भगवान जी तुम्हारी दात है। इज इट सो? लोग भूखे हैं, लोग रोटी पिछे दूजे टाइम ते मर रहे ने, लोग भुखे ने, लोग दुखी ने, यह रब जी की दात है। पुट अप वाई। सो आई आस्क्ड वाई। अगर एक गरीब विधवा स्त्री यहाँ बैठी हुई है, उसकी लैप में उसका बच्चा है, दोनों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और गर्मी बड़ी है, खाने के लिए एक चावल भी नहीं है, माँ के पास अपना दूध भी नहीं है जो उसे पिला सके, बच्चे को और माँ को स्किन डिजीज है, वो उसको उठाए तो मुश्किल, ना उठाए तो मुश्किल, और उसको जाके कहो बाणी च लिखिया केतिया दुख को सदमार, ये रब जी की दात है। वो प्रैक्टिकली लै पाएगी इसनों? कोई मदर से यस और नो? तुसी डॉक्टर को जानते हो ना, तुसी उसदा इलाज कराते हो ना, तुसी दिन रात माँ वांगू तड़फते हो ना। जे दात समझ ली तो फिर तो बैठ गए। सो बाणी चो बाणी दे अर्थ लभांगे। इसी करके लिविंग ट्रेजर थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। वी आर नॉन कंट्रोवर्शियल्स। क्यों? क्योंकि असी वाई पुटअप कर रहे हैं और असी गुरबाणी दे इंटरनल लॉजिक दे मॉडर्न ढंग दे नाल यूथ दी अज दी लैंग्वेज दे अंदर आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं और असी एक नवा समाज बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग न्यू सोसाइटी। ਜਿਹੜਾ इसनों सानू पुछदा तुहाडे लिविंग ट्रेजर दे मैंबर किस तरह बन सकते हैं, सो आई से कोई मैंबरशिप फीस नहीं है। तुसी बाणी पढ़ो, अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपना सुभाव चेंज करो, यू आर मैंबर ऑफ लिविंग ट्रेजर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई असी मनी गेम तो चलाई नहीं हुई है। ओके, सो केतिया दुख भूख सदमार, जदों असी बाणी पढ़ांगे तो बाणी पता लगेगा when I feel I am departed from God, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। Because everybody is in their house chores, everybody is busy in their routines, the life is very fast, no one has this time to think कि मैं रब तो विछड़े होया। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, वैसाख तीरन क्यों वाडियाँ जिन्ना प्रेम बिछो। जो अपने पति से अपने बिलवड से बिछड़ जाती हैं वो डिपार्ट को कैसे बर्दाश्त करे। तो जिहड़ा महसूस करे रब जी मैं तुहाडे तो विछड़े होया, है रब जी दी दात है। दैट यू कैन थिंक, इफ यू कैन थिंक यू कैन स्पेयर द टाइम, इफ यू कैन स्पेयर द टाइम यू कैन बी better than the earlier status। डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉरवर्ड, यू आर एलिवेटिंग, है ना। अच्छा, सच की भुख लग जाए, मनु ना विजडम की भुख लग गई है, काश तय साहिब की बात जी आख है, कहो नानक क्या दीजिए। अरे यार कोई बात करने वाला तो मिले, कोई गुरबाणी की गल ही नहीं करता। ए मैं आया, ए मेरे वीर विक्रम सिंह जी और प्रधान साहब, इन्होंने दसिया असी गुरुद्वारा अरेंज कर रहे हाँ, असी इत्थे चेंजिस कीतियां, सब कुछ होया ना।
ਪਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਆ, 14-18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਟ ਲੈਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਗਏ। ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਥ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਈ ਗੋਡ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ ਫॉर 3 days in your country and when you will talk about Gurbani? No one is talking about Gurbani. No one is interested what Guru Nanak said. People are happy, ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਬਸ what Guru Nanak said, this whole world is waiting. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ TV 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੇ 17,000 rupees ਪਰ ਡੇ ਫॉर 28 minutes। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, TV 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 17,000 rupees ਪਰ ਡੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਸਾਮੰਤ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ to polish you, to elevate you। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ TV ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕਲਰਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਪਾਦਰੀ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੈਡ no middleman required. They are discussing life after death. Hell or heaven ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ said no, there is nothing after death. Nobody can talk about that. There is no Sachkhand somewhere up in the sky. Sachkhand is here. Once you know how to go inside, Sachkhand ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਵੀ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਥੀਸ ਖੰਡਸ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਰੋਂਗ ਪਾਥ, ਮਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨॉट गुड, आई एम नॉट डिवाइन पर्सन, है ना। जिस दिन फील आई ना, उस दिन धर्मखंड अंदर एंटर कर गए। जिस दिन फील आई कि मैं बीमार हाँ, यू आर एंटर्ड इन धर्मखंड। एट द मोमेंट यू एंटर इन टू धर्मखंड, यू विल गो टू द डॉक्टर, बीमार हूँ। हियर यू विल गो टू गुरु, मेरा वैद गुरु गोबिंदा। जो ही गुरु को जावांगे उत्थे जाके ज्ञान खंड का आखो कर्म, सर अपनी नॉलेज दीजिए, लाइफ चेंज होती जाएगी। इंज असी धर्मखंड, कर्मखंड, श्रमखंड, सचखंड तक पहुँचते हाँ, अंदर दी अवस्था। करैक्ट। सो तुहाडा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे कितने सारे क्वेश्चन बन गए और उन्होंने आंसर भी इतना लंबा हो गया। आई एम सॉरी, बट माई रिक्वेस्ट इज़, जे प्रियोरिटी है बाणी नूं, बाणी दे इंटरनल लॉजिक दे नाल मीनिंग लभांगे, वाई पुट अप करांगे। मेक सेंस रवनीत जी? Absolutely, thank you very much. I appreciate your very good question, but I cannot say कि मेरे को आंसर ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਗੈਟ more deep into the Guru Granth Sahib and all the other
different talks. साडा अगर आइडिया चेंज हो जाएगा तो साडे परिवार का चेंज नहीं होएगा. There will be more rift, there will be more fights, there will be more problems for the family, and where will we go then? Husband will have different ideas, we will have different ideas, children have different ideas, because everybody will be having different thinking. Where will we come to the end? How will we compromise with the family? How will we run the family in a peaceful way that way? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? Mrs. Varsha Singh. ਮਿਸਿਸ ਵਰਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਟੇਗੀ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਾਣੀ ਮਨ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਘਟੇਗੀ? तो तिखा नहीं बोलोगे, लेकिन they can differ ना, they can have different opinion on the subject. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੋ ਸੁੱਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ. और चेंज नहीं होंगे, there will be different opinion, there will be fight, regular fight between the family. ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਨਾਓ. You are peaceful, the family is not peaceful, na? The family has problems. ਫੈਮਿਲੀ different thinking. ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ. ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਈ. ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਲੱਕੀਲੀ ਆਫਟਰ 4 months ਸੱਸ ਕਾਲਡ ਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਟੀ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ. ਦੈਟ ਮਿਰੇਕਲ ਕੈਨ ਹੈਪਨ. That will always happen. I see it with my family. When I think a different way with my family, then they have the problem. ਹਾਂਜੀ, In every custom and every way of working, they have different ideas. I have different ideas. I go with my custom, they go with their customs. ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ. ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹੀਓ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ Then ਗੁੱਸਾ there will be no ਕਰਦਾ, peace, na? I have a different thinking, you have different thinking, the family will have different thinking. Then you will have always the problems, the discussions, the backbitings, and there will be difference and there will be a lot of ਹਾਂ, problems in ਜਦੋਂ the family. ਉਹ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜੋਗੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤ ਹੀ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ. ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਗਨੋਰੈਂਟ. ਨਾਓ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ I'll go more deep into all these subjects. My ideas will be changing a little bit more than what is changed so far. Then there will be more discussions, and there will be more difference of opinion in the families. How will I control those families? ਵਰਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ एलोपैथी डॉक्टर कहेगा आपका एड्रेनलिन लेवल अप हो गया, आपका बीपी हाई हो गया, आप क्रोध मत करो,
आप हाइपर मत हो। I'm ए trying that. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यह रियलिटी है। I try to do that. वर्षा जी प्लीਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ। वर्षा जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਬੀਪੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ I'm very peaceful ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। It will be both ways. Difference of opinion. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਬਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। अपना भी करना है, बाकी परिवार का भी तो करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पीसफुल बनेगा ना परिवार मेरा। अपना देखो देखो वर्षा जी, मैं एक पत्नी होवां और मनु प्यास लगे तो मैं पानी पियांगी, पर मैं अपने पति नूं गुद्दी पकड़ के नहीं कहांगी तुसी भी जरूर पियो, पीना पेगा। नहीं, मैं पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई है, तुहानू जदों लगेगी पी लेना। वेरी सिंपल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵੀਰ ਜੀ आपने बहुत ही अच्छी एक चीज़ जो सानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਖੰਡ ਫਾਜਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੀੜ ਵੇਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਨਸਪਤ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜੋ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ देयर इज नो ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਭੁੱਖ ਮੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਸਵਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਚੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ, ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਠ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਝੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਉ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਭਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और रागी सिंह जी शब्द पढ़ते हैं, चीम चीम बरसे अमृत तारा, सानू लगता है देख क्या ग्रेट रागी जी हैं, बाहर बारिश आ रही है और इन्होंने शब्द देखो मौके पढ़ा है। इन वो चिम चिम बरसे अमृत तारा बाहर की गल नहीं चल रही, मन पीवे सुन शब्द विचार की अमृत तार बरसन की गल चल रही है। ਇਹਦਾ मतलब सानू आपस में बैठ बैठ के हर शब्द अपने ते अप्लाई करन वाले मीनिंग लभने चाहिए ने। साडी इस तरह विचारा होणगियां साडे चेंज आएगी। बस यही वंड छकना है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक्स फॉर शेयरिंग। वाहिगुरू जी की फतेह। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी। मेरा एक सवाल जन्मदिन मनाने ते और केक कट्टन ते है। अच्छा जी। इस बारे पिंदरपाल सिंह कहते हैं कि जन्मदिन मनाते हो तो मरण दिन भी आने। अच्छा जी। भुल जाते हो। अच्छा जी। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह। हाँ, हाँ जी। वो गुरबाणी शब्द आंदा है, जन्नी जादत सुध बड़ा है होता है, इतना कि जाने दिन दिन और घट है। हाँ जी। एक और शब्द है, जन्मे को वाजे बधाए सो लड़े अज्ञानी गाए। इन्ना जल्दी ना पढ़ो, सर पर एको भी समझ नहीं है। शिक्षा है तो उस बारे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए भी गुरबाणी के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए, केक कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, किस तरह जन्मदिन मनाना चाहिए, उस बारे थोड़ी चानन पाओ तो धन्यवाद। देखो तुहाडे क्वेश्चन का जिहड़ा बेस है ना, वो बेस इस ते बनया है कि जिहड़ी पंक्ति तुसी पहला कोट की है ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ सिंह जी, जन्नी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कि न जानना है कि छिन छिन औत कट। यही है ना। जे असी इसनों अपने ते एप्लीकेबल बनाइए, अपने ते एप्लीकेबल बनाइए, हुन तक ये मीनिंग आम प्रचलित है ना, तुम बर्थडे मनाते रहते हो, देखो तुम्हारा बेटा एक दिन मर जाएगा, इसकी उम्र बड़ी नहीं घट गई है, यही यही सोचनी रखी है ना। मैनू समझ नहीं आ रही है इस चीज़ की, इस वास्ते तुहाडे कोल क्लैरिटी। अब ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी मैं सांझ कर रहा जो साडे समाज विच थॉट प्रोसैस प्रिवेलिंग है। प्रिवेलिंग थॉट प्रोसैस है कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, यह गुरबाणी का शब्द है। इस शब्द के मीनिंग अपनी जगह जिस तरह जितों साडा दा लैक्चर शुरू होया है कि इंपोज किए गए बर्थडे उत्ते, जिवें पूता माता की असीस बर्थडे ब्रांड बना दिता शब्द, वो भी पुत्रा दे वास्ते बना दिता, जबकि मत सतगुर दी मत माता, चंगी मत माता मन रूपी पुत्र नूं सुनिया दे रही है। इत्थे तक ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी ठीक गल हो गई, ठीक हो गई इत्थे तक? यू आर विद मी राइट? जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कि न जाना कि छिन छिन औद कटत है। ये बारे इंज ख्याल बनाया गया कि गुरु साहब बाणी च कह रहे ने कि ए औरत, ए जननी, ए माँ, तू समझती है कि तेरा पुत्र बड़ा हो रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कि न जानना है कि छिन छिन औत, तेरे को नहीं पता तू बर्थडे बना रही है, दी तो उम्र कट रही है। यही तुहाडा बेस है ना क्वेश्चन का। भावें तुसी दूजा क्वेश्चन दूसरा शब्द पूछ रहे हो, पर क्वेश्चन जिहड़ा पहला बेस बनया जिहदे कारण यह शब्द आया, इसके अर्थ असी बाद विच आराम नाल सांझ कर लांगे, पर क्वेश्चन का बेस गलत हो गया। वो है कि मैं हुण तुहानूं पूछ रहा, एक माँ अपने बेटे का बर्थडे मनाते हुए सोचती है कि इसकी उम्र बड़ी हो रही है, लेकिन उसकी उम्र घट गई। एक किस बेस से बनाया गया है? इस बेस से बनाया गया है कि जब हम पैदा होते हैं हमारी उम्र लिख दी जाती है, उस तो घट हो गई ना, ऐसी सोचती है, बाणी नहीं कहती है। बाणी ये कहती है ए यूनिवर्सल लॉ है, जो उपजो सो बिनस है। इस धरती पर जो पैदा हुआ है उसकी एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन एक्सपायरी डेट लिखी नहीं हुई है। तुसी कार लैन जाते हो, तुहानूं वो मैनुअल देंदे ने और तुहानूं कहंदे ने इतनी स्पीड ते चलाया करो, स्पीड ब्रेकर ते आराम नाल चलाया करो, ज़्यादा ब्रेकां ना मारिया करो। ए कार दी लाइफ 5 ਤੋਂ 7 साल है, पर तुसी कार नूं होर एहतियात नाल चलाते हो, 8 साल भी चल जाती है, 9 साल भी चल जाती है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਨਾ, ਬੜਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਸੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਅਵਰ ਓਨ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਵੀ ਰਾਈਟ ਅਵਰ ਓਨ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਨੀ मेरी ਭੈੜੀ मत सोच रही है, सुत बड़ा होता है, मैं बड़ा सक्सेस हो रहा हूँ दुनिया में, झूठ बोल बोल के, हेरा फेरी कर करके, लोगों की दो की चार सुना के। अगला बंदा बोलता नहीं है, मैं उसकी जबान खिंच लेंदा वां, मैं चार बंदियां दे विचकार किसी नूं चुप करा देंदा वां। अगला थोड़ा जिहा बोलता है 20 डिग्री ते बोलता है, मैं 80 डिग्री का उच्चा उच्चा बोल के उन्होंने चुप करा दिंदा। वो 2 गालां कढ़दा, मैं 4 गालां कढ़दा। भैड़ी मत। मैं लोगों को पैसे लैके मुकर जाना, पैसे नहीं वापस करता। इस तरह जो मैं जैलसी करदा, मैं नफरत करदा, मैं अपनी अखां दे नाल हेट्रेड लुक दिंदा लोगों को, मैं लेट डाउन करदा लोगों को। मैं देख के कहना तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैनी है, तू बोधी है, तू गोरा है, तू काला है, तू अमीर है, गरीब है। ये सारी जितनी भी बिगाइलिंग डिसीटफुल मत है ना, इनू भैड़ी मत कहते हैं, इनू स्टैप मदर कहते हैं बाणी विच। जननी जानत सुत बड़ा होता है। तू गंदियां आदतां पाल के सोच रहे वड्डा हो रहा है। इतना कि ना जानना कि छिन छिन औद कटता है। औद का मतलब पता की होता है? फिजिकल उम्र नहीं। गुरबाणी चों अंत काल का महीना असी फिजिकल कढ़िया होया है। हुण मैं तुहाडे सामने पंक्ति बोलांगा, तुसी अर्थ करोगे। नानक जित वेलै विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। आत्मक मौत। वाह प्रितपाल सिंह जी वाह। दूजा शब्द अत सुंदर, कुलीन, चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अगर तू गॉड लाइक क्वालिटीज़ की प्रैक्टिस नहीं करता, बाहर से देखने में सुंदर लगता है, अच्छा अच्छा बोलता है, तेरी ज़ात भी बड़ी ऊंची कुल का तू लगता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, बड़ा धर्म का ज्ञाता समझता है, लेकिन अगर तू अंदर जहर घोलना है ना, मर गया उसी वेले। सो रिलीजन दी एज होंदी है जिस वेले असी सच दा पल्ला छड्डदे हां, उसी वेले मौत हो जाती है। असी शरीरक एज दियां गल्लां कर रहे हां। जे 100 वरियां जीवना भीता नो सीखे। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबड़ लगी दे। हुण कंबड़ लगी दे किनू कहंदे ने? असी शरीरक गेम दे तल ते बैठे हुए हैं। जदों आएगा सिर कंप्यो पग डग मगै नैन जोत ते हीन। हमने इसके अर्थ क्या समझे हुए हैं? एक बुढ़ा, उसका सिर ऐसे कांप रहा है, चलता है तो उस पाँव डगमगाते हैं। अस यही मीनिंग बनाए हुए ने। मेरे तो टुका ही नहीं। लो जी बुढ़े के बारे में हो गए। मैंने पाठ कर लिया, भाई साहब ने भोग पा दिता, असी पैसे दिते सी, 9वें महल्ले के श्लोक हो गए। एक बुढ़ा है, सिर कंबदा है, पैर दिसते, पैर डोलते ने, अखा तो दिसदा नहीं। विक्रम जी, गुरबाणी का एक एक शब्द साडे ते टुकदा है। रवनीत जी,
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂ। then I'm disciple, then I'm sincere, then I'm honest. ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ when you are confused। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਅਪਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਪੱਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ। ਲੋਕੀ ਰਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखा एक बंदे ने, एक बच्चे ने साइकिल चला रहा था, यहाँ पे 8 रखड़ियां बांधी हुई थी। इसका मतलब उसकी 8 बहनें थी। ऑब्वियस सही, ऐसा नो बोलो ना, सो गए हो? बोलो, मैं बहुत सीरियस गल नहीं कर रहा, प्लीज जागो जागो। एक मुंडा साइकिल ते जा रहा, 8 रखड़ियां बनी हुई, 4 इधर 4 इधर, और रस्ते 'ਚ कुड़ी ਨੂੰ छेड़ रहा सी। वो कुड़ी उन्हें कहती है, ये 8 रखड़ी बनवा ली हैं, इनकी अब तुमने गारंटी ले ली है कि तुम्हारी अपनी 8 बहनों के अलावा बाकियों को छेड़ोगे। आत्मक मौत हो गई कि बस ए मेरी भैन है, पर बेटी को बेटी जाना, पर स्त्री को मात बखाना है। वेख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने, जे असीं स्कूलों के अंदर पढ़ाना शुरू कर दें ना, इस धरती पर औरत का रेप खत्म हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ सज़ा देने नाल कुछ नहीं होएगा, ਉਹਨੂੰ फांसी देने नाल बाकियां नूं अकल नहीं आएगी, क्योंकि अपने बारे तो एस्केप ही कर लिया। सिर कंप्यो नौजवान दा या वड्डे दा सिर कंप्यो है, वो शेकन है, वो कन्फ्यूज्ड है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। सिर कंप्यो, पग डगमग है। पग डगमग का मतलब एक बुढ़ा चल नहीं सकता, मीनिंग नहीं ने। पग डगमग का मतलब है वो सच दे रस्ते ते चलन तो टॉपल करता है, शेक करता है। मैं देखन ही 16 साल का लगा, पर सिर कंप्यो है, कन्फ्यूज्ड माइंड है, पग डगमग, मैं सीधे रस्ते ते चलता नहीं हाँ, नैन जोतेहीन, मेरे को इनसाइट नहीं है, विजन नहीं है, मेरे को देखन की अकल नहीं है, हाउ टू लुक एट। मैं बुढ़ा हाँ, भावें मैं उम्र का शरीरक तल ते कोई भी होवां, लेकिन साडे घरां विच बुढ़ियां नूं देखदे हो। साडे घरां च मेरे मदर उन्होंने 93 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ साडा 16-18 साल का मुंडा राती 3-3 बजे तक जागदा रहिंदा है, उल्लू। सवेरे 2 बजे उठता है, मम्मी ब्रैकफास्ट दे दो, दोपहर नूं 2 बजे उठ के मम्मी ब्रैकफास्ट दे दो। मम्मी कहती है दोपहर के 2 बज गए हैं, तू अब उठ रहा, अच्छा नहा के आना। नहीं नहीं, भूख लगी है, पहला मेरे को ब्रैकफास्ट दे दो। साइंस सिखा रही है तेरा स्टमक सिस्टम चंगा रहेगा जे तू नहा के खाएगा, कुछ नहीं। ਇਹਦਾ ब्रैकफास्ट दोपहरी 2 बजे शुरू होया, ਇਹਦਾ लंच राती 9 बजे होएगा। उल्लू सिर कंप्यो, पग डगमग है, नैन जोतेहीन, को नानक के बिद पई तऊ ना हर रसलीन। हर रसलीन का मतलब हर 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 वाजे तबले ते हर 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 नहीं है। हर रसलीन का मतलब है तूने विजडम नहीं ली, ट्रुथफुल लिविंग नहीं सीखी, जीवन जांच तेनू समझ ही नहीं आई। आइडियल जीवन जांच की होंदी है? तू किहड़े मजहब दा डजेंट मैटर, तू किहड़ी डिग्री लैंदा डजेंट मैटर। तैनू फोन और व्हाट्सएप और सब कुछ करना बड़ा जबरदस्त आंदा है, कंप्यूटर बड़ी नॉलेज है, डजेंट मैटर। तेरा स्टेटस की है, डजेंट मैटर। तैनू जीवन जांच ते आंदी नहीं। कल राती सी भोगल शब्द पढ़िया सी, सूके हरे किए खिनमाए। जो विजडम लैंदे आ, साडी लिविंग ट्रेजर का लोगो है, 2 ऐसे पत्ते बनाए हुए ने, सुके पत्ते हरे हो जाते हैं। कदों जदों विजडम लैंदे ने, विजडम रूट्स तो लैंदे ने। साडियां रूट्स की ने? रब को कबीरे राम की अंश। सारी दुनिया यूनीवर्सल ट्रुथ ते जी के सुखी हो सकती है, किसी नूं मजहब कन्वर्ट करन नाल नहीं।
ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। दैट मीन्स कि वो बंदा इंटरेस्टेड है कि मौका मिले तो मैं झूठ बोल के ब्राइब लेके हेरा फेरी करूँगा, क्योंकि उन्होंने सक्सेस नज़र आ रही है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੌੜਾ बोल लिया करो, चॉइस अच्छा गाली निकाल लिया करो, तुम टिट फॉर टैट कर लिया करो। जननी जानत सुत बड़ा होता है। अबे मंदे ख्यालों से अपना करैक्टर बना के सोच रहे मैं कामयाब हो रहा हूं। देखती जमराव हसता है, जमराव होता है डीमन थॉट्स। द मोमेंट यू क्विट सच दी विचार, डीमन थॉट्स अटैक। श्रम तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो, उसी टाइम कूड़ छा जाएगी। मंदे ख्याल अटैक कर देंगे, कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। पाप की जंज लै काबल होता है, जोर ही मंगे दान वे ला लो। साढ़े को गुड क्वालिटीज खो लेंदियां ने डीमन थॉट्स। सो वी इमीडिएटली क्विट द गुड थिंग्स, अपने सुभाव चों मंदे ख्याल छोड़ देते हैं। इस बेस से उस शब्द नूं भी विचार लेना, ठीक है। सो जन्नी जानत सुत बड़ा होता है, माँ बारे बर्थडे बारे नहीं है। कोई भी कह सकता उन्होंने ड्यू रिगार्ड्स उन्होंने ठीक होणगे, मैनू अपने ते एप्लीकेबल है अर्थ समझ आए से। थैंक्स फॉर शेयरिंग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा क्वेश्चन हैगा उन्हें जिस तरह वीर जी ने कहा बई बर्थडे के उपर या मरण दिन के उपर, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 550 ਸਾਲਾਂ, और असी कहते बर्थडे मनाइए या ना मनाइए। फिर असी कहने भाई सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। क्या मतलब 12 नवंबर ਨੂੰ ਹੀ सतगुरु नानक प्रगट होएगा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਅਸੀਂ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ क्या मैं अपने प्यो का जन्म या मैं अपने गुरु का जन्म उस दिन ही मनाना है, मतलब 550 साल के नाल कि मैं फिर कहूँगा कि भाई मैं बहुत अच्छा मना लिया है। द रीजनल ट्रेजर ऑफ द गुरु विच हैज़ नॉट बीन अनफोल्डेड बाई मी हाले तक, और मैं उस दिन भी उन्होंने अनफोल्ड ना किया तो फिर भी मैं क्या इन ए वर्ल्डली मैनर बड़ा अच्छा मना लिया। वन ऑफ माई क्वेश्चन इज दिस कि भाई वो जड़ा नानक जड़ा प्रगट होया पिया है उन्होंने मैं अपने अंदर प्रकाशमान किस तरह करा। तो दूसरी चीज़ मैं तो सांझ करें कि इन ऑल गुरुद्वाराज समटाइम वी फाइंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स कि भाई असी कोशिश की जिस तरह भाई अखंड पाठ साहब गुरुद्वारे असी साकेत नहीं करवाते, वी हैड लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, साड़ी दुकान भी बंद हो गई जी गुरुद्वारे की होंगी हैगी है कि भाई भेटा नहीं आएगी, गुरुद्वारा किस तरह चलेगा, क्योंकि 6-6 अखंड पाठ हूँ कई गुरुद्वारे से जाने 6-6 कमरे बने पे उपर अखंड पाठों की लड़ियाँ चल रही हैं। दैट्स अनदर क्वेश्चन। दैन वी स्टार्टेड ओके लेट्स डू सहज पाठ, असी हूँ सहज पाठ की कोशिश कर रहे हैं। उस तो अगली जी चीज़ है कि दैन विचार जरा हुणे गल हुई विचार किस तरह करना है। Sometimes when we talk about vichar, then there is a conflict of mind between one person to another person because we have understanding problem and somebody's understanding is misunderstood by somebody else. जिस तरह की होंदा सी की करने कदी कदी भाई गुरदास जी की
ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। What happens, maybe Bhai Veer Singh has narrated a poetry which cannot have the relevance with the Gurbani of the context of the time and the contest. But it is my imagination how I take my guru into that philosophical manner। कई बार चीज़ देखो कि पोइट जो है ना बड़े अगे तक चला जाता है और कई चीज़ें लिख दिता है और जिदे प्रोबेबली माई गुरु इज़ अगेंस्ट। My guru doesn't say that what the poet says, तो उत्थे मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड आ जाता है। फिर उसी सारे असी सोचना चालू करते हैं नहीं यार ये तो बिल्कुल ठीक है, गुरु नानक साहब ने अखा मिट्टियां होणगियां ते नानकी ने याद किया तो गुरु साहब आ गए, इट्स ए मैजिक। नो क्वेश्चन इज गुरु नानक रियली ट्रेवल्ड और ही डिड ए मैजिक? Did he travel 42,000 kilometers by foot? और ही जस्ट डिड दैट मैजिक कि भैया जिस तरह असी कई बार कहते क्योंकि उन्हें इन्नी पावर है, इन्नी ताकत है कि वो तो सब कुछ कर सकते सी। क्या ही वॉज ए मैजिशियन? यू नो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसलिए असी गुरु नानक की गल करने चालू करते हाँ तो वो कहते भैया असी इस तरह कर लिए। मेरे मतलब ये सारिया जो चीज़ां है शंका वाई आई एम सेइंग इज असी वी आर इन टू मिथ, वी आर इन टू दी रिचुअलिटी, वी आर इन टू फैनेटिज्म, we are into that sort of a living जिथे असी कहने भी इत्थे मैं कीता ते हुणे मैनू कुछ मिल गया, मैं चलिया कर रहा, मैं वो कर रहा। फिर जिसले असी कोई कहने भी चलिया दी ना करिए तो बंदा कहता यार ते नास्तिक हो गया। यू नो दीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। हाँ जी ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। चरणजीत सिंह। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ओपीनियंस ने और बहुत सारे प्रबंधक ने और बड़ी सारी संगत है। सारे सिस्टम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 550 ਸਾਲਾਂ ਪੂਰਬ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਇੱਕ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਆਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਸ ਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और मैं अपना जीवन चेंज करने वाले पासे उद्यम करना है। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। I am Vatsaldeep. I just have a brief question. What's your name? Vatsaldeep. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। VATSALDEEP. ਵਤਸਲਦੀਪ। Yeah, that's right. ठीक है जी। Just a brief question. It's a hypothetical question. For example, if Guru Nanak Dev Ji comes back, what would be his feeling seeing the institution of Sikhism
what all is happening, and how will he map his ideology to the present day scenario? I think when he came, at that time he propagated universal truth, truthful living, सचोर है सबको ऊपर सचाचार. So he said कि प्रैक्टिकल लिविंग द अमली जीवन होना चाहिए. करेक्ट. वन शुड लीड द लाइफ ऑफ आइडियल्स, मोरालिटी. करेक्ट. Agreed. गुरबानी से सच पुराना ना थी है, सच पुराना नहीं होता. सो मैनू इंज लगता जे आज भी आ जाएंगे, आज भी वही प्रोपेगेट करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम ही प्रोपेगेटेड हिज मैसेज थ्रू गुरबानी. आज भी आ जाएंगे गुरबानी कहने, क्योंकि ये जुगो जुग अटल है, सच है, खरा सच है. राइट. दुनिया विच लोकी एडवांस जितना मर्जी कर जान, जितने मर्जी हर कंट्री वाले चांद ते टुर जान. आज इंडिया भी ट्राई कर रहे हैं ना, अच्छी गल है. सारी दुनिया वाले चांद ते टुर जान, लोगों के मकान हो जान, लोकी अपने अपने प्राइवेट रॉकेट रख लैन, चांद ते जान, जिस तरह मर्जी करन, पर सच पुराना ना थी है. जिहड़ी इंडिविजुअल दी मोरैलिटी दी जर्नी है ना, उस जर्नी दे जिहड़े डेस्टिनेशन दे इफेक्ट्स ने ना, एक्सटैसी, वननेस विद गॉड, इक्वैलिटी, मिठा बोल, स्पिरिचुअलिटी, ए पुराने नहीं होंदे ने, ए हमेशा इक्को ਜਿਹੀ रहणगे. 100 सियाणे इक्को मत मूर्खां आपो अपनी. लोकां दे अपने ख्याल बदलते रहणगे आने वाली सदियां तक. मैं कार दा मकैनिक हाँ, हो सकता है नवा, पहला कार दा मकैनिक होंदा सी, बोनट खोल के देखता रहता सी कित्थों कार खराब है, कित्थों कुछ है, कित्थों कुछ है. फिर कोई सियाणा होंदा सी, एकदम लभ लैंदा सी, आवाज़ आ रही है, ऐसे आ रही है, रेस दो, ब्रेक लगाओ, स्टेयरिंग को घुमाओ, और नुक्स लभ लैंदा सी. अजकल हो गया कार नूं कंप्यूटर नाल जोड़ते लभ लैंदे ने. अगली सदी च आएगा लोकी होर सौखा लभ लैणगे. अगली सदी डॉक्टर भी आएगा, होर सौखा साडा लभ लेगा बीमारियां दे. इस तरह साइंस करके मनुख जितना मर्जी एडवांस कर सकता है, पर स्पिरिचुअलिटी वास्ते टू फिक्स अप वंस एटीट्यूड रिमेन्स सेम. हज़ारां साल पहला भी असीं इंज ही सोचते सी, तू मेरे नाल नफरत करदा सी, मैं इहदे नाल नफरत करदा सी, तेर मेहर होंदी सी. गुरु साहब कहंदे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा. सारी बाणी यूनीवर्सल ट्रुथ की गल करदी और वो पुरानी नहीं होंदी. तो गुरु नानक साहब जे अज भी आ जान, मैं तो खैर गुरु नानक नहीं हाँ, पर बाणी पढ़ के मैनूं इंज लगदा वो अज भी गुरबाणी की ही गल करनगे. मिडल मैन नूं आउट कर देणगे, स्वर्ग नर खत्म कर देणगे, कर्म कांड पाखंड खत्म कर देणगे, भूत प्रेत खत्म कर देणगे, धागे तवीत जादू टूणे खत्म कर देणगे, ते लोकां नूं सुपरस्टिशियस बिलीफ तो छुड़ा देंगे. मिडल मैन आउट कर देंगे, कहेंगे तू अपनी रोटी आप पकाया कर. सर एक छोटी चीज़ सी सर, बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਦ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਵਿਲ ਚੇਂਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਕਿਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ. ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਿਮੇਨਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਿਓ. ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ. थैंक यू वत्सल जी. आई जस्ट वांटेड टू नो सर, व्हाट डू यू थिंक कि कुछ मोडस ऑपरेंडी चेंज करना पड़ेगा आजकल के सिनेरियो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, इन ऑर्डर टू कनेक्ट मोर पीपल, इन ऑर्डर टू मेक देयर पाथ राइट. उस चीज़ सी सर. जदों उपदेश 100 वर्ना को साझा है, मैसेज इक्वल फॉर ऑल है, रिगार्डलैस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कम्युनल हेट्रेड है, तो इस तो होर की मॉडल चेंज करोगे? मैसेज सेम है बट द नहीं, मोड देखो ना, डिलीवरिंग इट. आज असी कह रहे हैं फॉर एग्जांपल दुनिया में 260 धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बोधी है, ऐसे 260 धर्म है. जो गुरु नानक साहब मान के 260 के 480 हो जाएंगे, तब भी वही कहेंगे इक्वालिटी में रहा करो, लोगों से नफरत मत किया करो. अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे. प्रैक्टिस करो. सब में ह्यूमन बींग देखो, सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रहे देखो, घट घट में अर्जू बस है देखो. तब 260 के बदले 480 धर्मां नूं यही कहणगे.
मॉडल चेंज नहीं होएगा। मॉडल है साडा थॉट प्रोसेस, मॉडल है मेरा मन, हाउ माई मन थिंक्स। इट कैन बी ओनली डिस्टर्ब्ड बाई डीमन थॉट्स एंड कैन ओनली बी फिक्सड अप बाई विजडम स्पिरिचुअलिटी। यह मॉडल सेम ही रहेगा, यह इक्वेशन सेम ही रहेगी। वत्सल जी, मेक सेंस? True, sir. Thanks a lot. Thanks for your time. थैंक यू। ਐਸਨ ਵਸਲਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਯੂਥ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਜਣ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਬਰਥਡੇ ਆਫ ਅ ਫਾਦਰ who is not alive. So what's the best way to connect with Nanak's thought? बर्थडे ऑफ होम? We never celebrate the birthday of our father who is not alive. Sade Pita ji who is not alive. So what's the best way to connect with Nanak's thought? Guru Nanak Sahib never said to us that you are supposed to manao mera birthday. ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਗ, ਜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੌਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੁੰਦ, ਮੇਰਾ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ, ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੇਗਾ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਪਲ ਚੇਂਜ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ, गुर का शब्द का मतलब राम 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 अल्लाह 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 वागरू 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 नहीं है। गुर का शब्द का मतलब है विजडम की सहायता से बनावो ये मन, अपना नया मन पैदा कर ले। फिर तू 24/7 सोंदे भी वाह वाह, उचरे उठते भी वाह करें। तेरा प्रकाश उत्सव है, तेरा बर्थडे है, तू जन्म ही ले रहा है, तू आत्मक मौत मार ही नहीं रहा। यू आर इटर्नल। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। अगर भगवान इटर्नल है तो यू कैन बी इटर्नल। रब अजू नहीं है, तू भी अजू नहीं हो सकता है। तू पल पल कुत्ते वाली एक्टिंग ना करया कर।
ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਕਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੋਲਿਆ ਕਰ, ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਅਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 96 ਜਾਂ 97 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੈਟ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ 3, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ 4, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਟੇਕਿਆ 5, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 6, ਫਿਰ ਹਰ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ गुरु पातशाह कहते हैं शीस नेवाया क्या थिए जा हृदय कुशुद्ध जाए। बाहर से ये 10 जगह इधर से जाके मत्था टेकता है, फिर पीछे से जाके मत्था टेकता है, इधर हार रख देता है, फिर इधर से एक फूल ले लेता है, फिर फूल लेके यहाँ डाल लेता है, कोई फूल को वहाँ पर सुखासन स्थान में डाल देता है। ये 10 जगह मत्थे टेकन की बजाय एक बारी टेक लै विजडम नू, गुर का शब्द बनावो ये मन। बाहर लाइटा जगाई फिरदा है, असी लाइटा बालते हैं ना। मैं बचपन ही सुनिया सी, आज 15 अगस्त है, इंडिया गेट पे लाइट होगी, आज 26 जनवरी है, चलो लाल किले में लाइट देखने चलते हैं। ये बचपन ही सुनिया सी। हुण असी बच्चों को कहते आओ बंगला साहब चलिए लाइटिंग होएगी, बाहरलियां लाइटां जगा के असी गुरुद्वारियां विचकार गरीब नूं एक चम्मच तेल देण नूं तैयार नहीं। गुरुद्वारे देसी घ्यो दी जोत लगातार बाली जा रहा। गुरु कह रहा है जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानण हुंदिया गुरबिन कोर अंधार। तेरे अंदर ते हनेरा है, अंदर ते हनेरे नूं चानण कर लै, प्रकाश है, प्रकाश डेली है। असी बाहरली लाइटां ते तां डिपेंड कर गए पर अंदर चानण नहीं किया। बाहर जोतां बालदे रह गए, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। तेरे अंदर भी चानण हो सकता है। कैसे? गुरसाखी, गुरसाखी का मतलब गुरु की सिक्ख्या है, एडवाइस बाई गुरु। गुरसाखी जोत प्रगट होए, हर किसी अंदर जोत बाल सकती है, असी बाली नहीं। असी गुरु ग्रंथ साहब की पालकी नूं ढेर सारियां जगबुझ दियां लड़ियां लगा दित्तियां। वैसे जगबुझ दियां लड़ियां कित्थे लगदियां? जदों कदी असी कित्थे जांदे हां उत्थे डांस हो रहा होंदा है, सानू डिस्ट्रैक्ट करन वास्ते जगबुझ दियां लड़ियां नहीं लगियां होंदियां। सानू किहने कहा कि असी गुरु ग्रंथ साहब की पालकी ते जगबुझ दियां लड़ियां लगाई है? क्यों? क्योंकि सानू जोतां बालण दी, बाहर लाइटां जगाण दी आदत पई है। साडा यूथ कहंदा तुसीं की पखंड प्रैक्टिस करदे हो। यूथ मैनू आके कहता है, मैं कहता मैं भी सारिया नाल हाँ, मैं कोई सेवियर नहीं हाँ, मैं किसी नू रोक नहीं सकता, पर असी बाणी चो सीखना है, अंदर दी जोत बालनी है। मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया, खेड़ा आ गया, विगास आ गया। जिन्हां दा चन्न चढ़ जाता है ना, वो नूंहां अपने सस सोहरे नाल मिसबिहेव नहीं करदियां। जिन्हां दा चन्न चढ़ जाता है ना, वो नूंहां अपने सस सोहरे नूं कहंदियां मेरा हसबैंड बहुत अच्छा है, तुसी कितनी प्यारी यदि ग्रूमिंग कीती होएगी, मैं तुहाडे चरण धो के पींदी हाँ, मैं नम्रता नाल तुहाडे दे वारने जांदी हाँ। इत्थे चन्न चढ़ चुका है ना, वरना वो कहंदी है तुम बुढ़ा बुढ़ी साइड पे हो, दफा हो यहाँ से, ये पति मेरा। पति नूं कहंदी है ओ इनसे बात नहीं करनी, प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी मेरे नाम पे लिखा लो। ये जो होंदा कि नहीं होंदा? चन्न जो नहीं चढ़िया, बर्थडे बना लिया, केक ते चाकू कट दिता, मोमबत्ती फू बेटा ऐसे बुझाते हैं, ऐसे जगाते हैं। बाहरले चन्न नहीं चढ़ाए ना, अंदर दा चन्न चढ़ाना सी। ए बाहरलियां प्रैक्टिसिस सानू नहीं सीधे राह पा रही ने, बाहरले बर्थडे नहीं मनाने ने। विक्रमवीर जी मनु अफसोस तो उस वेले होया सी कि तुसी मैनू दसो, गुरु अर्जन पातशाह वाले पुरब ते गुरु ग्रंथ साहब किधर नहीं लिखा कि असी छबील वरताइए, लेकिन गुरु अर्जन पातशाह का पुरब केड़ा हुंदा है? प्रकाश उत्सव हुंदा है कि शहीदी दिवस हुंदा है? माइक ते बोलो ना। शहीदी दिवस। शहीदी दिवस। मनु एक विमेन ने कॉल की, कहती आज गुरपुरब है, गुरपुरब की वधाई जे। मैं हैरान हो गया,
ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੈਕਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫॉरवर्ड कर देते हैं। दिस इज साइलेंट निंदा, यहाँ से बोलने से नहीं होती, फॉरवर्ड कर दिया सुबह सुबह। गुरु कह रहा सी सवेरे उठ के पाठ करया कर, नितनेम करया कर, गुरु नाल जुड़िया कर। असी सवेरे सवेरे उठन सार अखा मलदे मलदे अच्छा कितना आया, कितने लोगों को फॉरवर्ड करना है। निंदा, देखो फलाने ने ऐसे कैसे किया। तो रब ने ड्यूटी लाई है कि तुसी निंदा करो, फॉरवर्ड करो। इस तरह चानन नहीं होया है। असी चेंज होना है। गुरु का शब्द बनावो, ये मन नवा मन बनाना है। ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन आंसर हो गया? हाँ जी, थैंक यू सो मच। सवाल Thank मैं you. सिर्फ पढ़िया सी है किधरों निष्काम सवाल आया सी। एनीवे, थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जी, एकता जी आओ। जी बच्चे, So mine is a very simple question. I just want to ask, how do the modern teachings, like we've been listening to The Secret and the power of positivity and how thoughts become things, how does that compare with the teachings of Guru Nanak Sahib or Gurbani in general? see if I quote again that फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। The meaning is, you do not carry the past or the enmity, and don't carry the anger with that, right? What kind of mode is required? Each individual has to understand the Gurbani subject to applicable on himself or oneself, and that's how it should work. What system you're talking? I could not get your question then. You know how the modern age things are going on, of how like thoughts becomes things, or we create our own destiny, or these, I don't know if you've read about The Secret, it's a very popular book. So how does that compare with Gurbani? For example, I wrote this book Satgur, right? Like that, very small books, how to conquer your anger, how to conquer your lust, how to conquer your senses, how to have good behavior, है ना, how to have your good relationship, parents and kids. We have one book on Char Lama based, No, modern this method. is something more specific, like what we talk about these days on how we are the masters of our destiny, how our thoughts create our own destiny. How does Gurbani compare to that? That's what we have written in those books. No, but what is your opinion? I mean, Gurbani says you are responsible of your thoughts, and you are responsible of your character, and you are responsible to get the wisdom and make yourself new. You have to make your destiny. Gurbani does not believe that destiny is written by God somewhere. so there's nothing preordained. No, not at all. Gurbani speaks logical, scientific, and forever's truth message. Okay. If I believe predestined है, then I won't quit taking alcohol. Predestined है, I won't quit gambling. Predestined है, मैं एक लड़की को छेड़ता हूँ, I won't quit it. Predestined है, भगवान ने कराया। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, अगर कोई आके मेरी वाइफ का पर्स छीन लेता है और स्नैच करता है, राइट, तो अगर प्री डेस्टिन्ड है, मैं उसको ले जाओ, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा छीना होगा, भगवान ने ऐसे ही किस्मत में लिखा है, जाओ जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे को प्री डेस्टिन्ड का फार्मूला याद कराया। वी डोंट प्रैक्टिस दैट। वी डोंट से पिछले जन्मों के कर्म लिखे हुए हैं, ले जाओ भाई साहब, ले जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। गुरबानी सेज यू राइट योर ओन डेस्टिनी, you are responsible for your character,
दद्दा दोष न देव किससे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। द मोस्ट यू आर मॉडर्न, द मोस्ट यू आर एबल टू फॉलो गुरबानी, simplicity. Thank you.